Hello students, today we are focusing on the topic dynamic scheduling using Tomasulo approach. In previous lecture we discussed about pipeline hazards, different pipeline hazards like structural hazard, data hazard and control hazards. Okay, to avoid those hazards, static scheduling we have discussed here. Now we are going to look at the dynamic scheduling, which will be done by the hardware approach. So here after this lecture, students able to know what is the difference between static and dynamic scheduling and able to understand the concept of Tomasulo algorithm. These are the two objectives. See here. So pipeline, with the pipeline, by overlapping the instructions, we will improve the system performance. So to achieve the system performance, instruction level parallelism also one topic. One concept. So this will be achieved by two approaches. One is compiler based static approach, which we discussed earlier, and the second approach, hardware based dynamic approach. So these are the two important approaches. Today we are going to focus mainly on hardware based dynamic approach. So the goal of instruction level parallelism is to minimize the cycles per instruction. In normal pipeline concept, that is cycles per instruction is equal to ideal CPI, that is base CPI. Okay, and in suppose hazards are occurred, then it will be added to the stalls, that is structural data and control hazards timing also it will be added. Okay, so with these hazards we are not achieving our performance, so we need to improve the performance, so we need to avoid these three hazards. Okay, structural data and control hazards. Okay, so now we'll see why dynamic scheduling and what is dynamic scheduling. So rearrange the execution order of instructions to reduce the stalls while maintaining the data flow. Okay, so by rearranging the execution order, then we'll get the minimize the stalls and get the improvement of the performance. Okay, so compiler scheduling is static scheduling, in which compiler made necessary changes in issue the instructions to order to instruction order to hardware. So while scheduling the instructions है ना कैसे execute करना है hardware को instructions compiler देती है. This is called in order execution. Compiler will make necessary changes and issue the instructions to hardware and instruction order to hardware. उसी order पे hardware को execute करना पड़ेगा. This is called in order execution. But hardware scheduling is dynamic scheduling, where hardware changes the instruction schedule and then it will execute. This is called out of order execution. Okay, this is basically dynamic scheduling. Rearrange the instructions for execution, so then execute it to get the reduce the stalls. So it's equal dynamic scheduling कहते हैं अपन. So why advantages of the dynamic scheduling? See, compiler does not need to have the knowledge of computer architecture. So compiler is scheduling. Here one should know the concept of hardware companies are different and compiler developing companies are different. Okay, if compiler wants to rearrange the instructions, it should know the each and every details of hardware. Okay, hardware company needs to share the details to compiler company. Okay, in security point of view, this will not be good. Okay, suppose some hardware companies doesn't want to share their details, then so at that time hardware will only changes, that is called dynamic scheduling. Okay, so it does not need to have the knowledge of computer architecture. Compiler architecture के companies compiler companies को need data share करने की जरूरत नहीं है. This is the one advantage. And second advantage is it will handle those cases whose dependency known only at compile time. Okay, so सभी instructions को compile time में ही अपन को पता before the execution कुछ dependency अपन पता नहीं कर पाएंगे. One classic example is this one. Okay, blue color में है this one. Okay, देखिए this is the flow dependency. यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R1. This will identified by compiler है ना. Compiler able to identify this type of. And here also, what does it mean store?
5 प्लस रजिस्टर मतलब R1 की क्या कंटेंट्स है प्लस 5 इस लोकेशन पे R4 की क्या है वो वहां पर स्टोर करना है मेमोरी पे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. लोड मीन्स from that address fetch the instruction and load into register 6. Okay, so this is the meaning of these two instructions. Okay, here also compiler able to identify 5 plus R1 5 plus R1 दोनों सेम लोकेशन है. स्टोरिंग एंड लोडिंग सेम लोकेशन से अपन नहीं कर पाएंगे एक टाइम पे. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हजार्ड. ओके, इफ करेंगे मतलब पता करेंगे, बट यहाँ पर ये वाला आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कंपाइलर के टाइम पे. इट विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. देखिएगा, सो कंडीशन ये दिस R5 की contents it will be stored in memory location 9 plus content of R3. ओके, सो यहाँ पर यही है लोड है ना. सो बट ये दोनों डिफरेंट है. आप क्यों ये डेटा डिपेंडेंसी में बता रही हूँ. सपोज इन सम केसेस 100 इंस्ट्रक्शंस में एक इंस्ट्रक्शन का 9 प्लस रजिस्टर आते, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R3 प्लस 9 इज मे बी इक्वल टू 10 प्लस रजिस्टर ऑफ R4. ये दोनों की कंटेंट सेम हो गया सपोज. सो एड्रेस की लोकेशन सेम हो गया, देन स्टोर भी उसी में करना है एंड लोड भी वहीं से करना है. मतलब फेचिंग एंड स्टोरिंग दोनों एक ही जगह से लेकर आना है. सो दीज टाइप ऑफ instructions cannot be identified at the compile time, है ना. After run execution only we will able to know what is the output of this one, what is the output of this one. Effective address क्या है मेम के बाद अपन को पता चलेगा. Then be able to know okay हाँ this will be the, so दोनों same है तो this cannot be instruction level parallelism cannot be, मतलब ये दोनों एक साथ execute नहीं कर सकते हैं. सो ये अपन इट विल बी एडवांटेज ऑफ डायनेमिक शेड्यूलिंग. ये हार्डवेयर है तो इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. ओके, सो दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक शेड्यूलिंग. सी, सो डायनेमिक शेड्यूलिंग पे कैसे काम होगा. इट विल बी इन नॉर्मल पाइपलाइन. देखिएगा, इट विल बी इश्यूड एंड एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर, है ना. नॉर्मल पाइपलाइन पे चेंजेस नहीं होगा ऑर्डर पे. यहाँ पर क्या होगा, इश्यूड एंड एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर पे. सिर्फ देखिएगा ये दीज आर द 3 इंस्ट्रक्शंस. ओके, इसी ऑर्डर पे आपको एग्जीक्यूट होना चाहिए. यहाँ पर एक डेटा डिपेंडेंसी है. ओके, सपोज यहाँ स्ट्रक्चरल हजार्ड है. डिवाइजर इज यूजिंग बाय सम अदर रजिस्टर और सम अदर इंस्ट्रक्शन. ओके, देन इट विल टेक मोर साइकिल्स, है ना. यहाँ पर ये रुक गया. सो ये रुकने के बाद ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. सो क्या करेंगे, डायनेमिक शेड्यूलिंग इट विल सेपरेट द इश्यू प्रोसेस इन 2 पार्ट्स, है ना. एक चेक स्ट्रक्चरल हजार्ड है क्या, एक बार चेक करेंगे. कोई भी वेट कर रहे हैं कि हजार्ड के लिए, इसको भी एक बार चेक करेंगे. देन ऑर्डर को चेंज करेंगे. ओके, सो देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चरल हजार्ड है बिकॉज डिवाइजर इज नॉट अवेलेबल. ओके, बिकॉज ऑफ दैट वेट पे ये वाला डेटा हजार्ड है, इसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं तो ये भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. बट सब्ट्रैक्शन इज एंटायरली इंडिपेंडेंट, है ना. इस दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसको एग्जीक्यूट अपन कर सकते हैं. सो ऑर्डर को चेंज करो, इसको एग्जीक्यूट कर दो पहले, तब तक आपको डिवाइजर अवेलेबल हो जाएगा. डिवाइजर अवेलेबल होने के बाद एडर को एडिशन को एग्जीक्यूट कर दो. ओके, दिस इज कॉल्ड द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन. ओके, सो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन आप इम्प्लीमेंट करने की वजह से देयर विल बी 2 हजार्ड्स विल बी अकर्ड, वार हजार्ड एंड वाव हजार्ड. ओके, सो वार हजार्ड बिफोर द previous lecture I explained only raw hazard, read after write only, that is flow dependency. Here anti dependency and input output dependency यहाँ पर देखेंगे. देखिएगा add R4 R3 R1 ये है, तो ये नॉर्मल पाइपलाइन पे मतलब आपको इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे देयर विल बी नो प्रॉब्लम. देखिएगा यहाँ पर सो दिस इज द रीडिंग, है ना. रीडिंग आपको थर्ड साइकिल सेकंड साइकिल में ही हो जाएगा. एंड ये राइटिंग है, राइटिंग या कब होगा, ये 5th साइकिल में होगा. सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दिस. ओके, बट कब प्रॉब्लम हो जाएगा, सपोज सब्ट्रैक्शन पहले एग्जीक्यूट करना पड़ा, देन आपको गलत वैल्यू यहाँ पर R1 इट विल बी मतलब नेगेटिव कुछ, है ना, रॉन्ग वैल्यू विल बी कमिंग, है ना, एडिशन. एट दैट टाइम इट विल बी ए वार हजार्ड विल बी ए प्रॉब्लम, है ना. यहाँ पर प्रॉब्लम होगा. सो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन लीड्स टू दिस टाइप ऑफ हजार्ड्स, है ना. सपोज ये ऐड कहीं और है, सब कहीं और है, बट आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, देन इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर दिस. ओके, लाइक दैट यहाँ पर भी वाव हजार्ड मीन्स दोनों सेम रिसोर्स को मतलब R4 को यूज करना चाहते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ हजार्ड्स
विल बी लीडिंग, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन से। उसको कैसे अपन कैसे करेंगे, बाय रीनेमिंग दिस, ओके, रीनेमिंग द इंस्ट्रक्शंस। ओके, देखिए यहाँ पर ये है, सो यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर ये सब्ट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करो, फिर डिवीजन, फिर एडिशन। इवन दो दिस F8 है ना, दिस वर्ब हजार्ड विल नॉट बी, मतलब आपको वर्ड नहीं कर सकते। सो ये दिस इज ओनली रजिस्टर डिपेंडेंसी, है ना। इसको कैसे रीनेम करते हैं, जस्ट इसका नाम चेंज करिएगा, लाइक टेम्पररी रजिस्टर। तो सब्ट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करिए, मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करिए, डिवीजन को करिए। टेम्परली इस रजिस्टर का नाम चेंज करने से यहाँ दोनों के बीच का अपन को ये हजार्ड को मतलब अपन डील कर सकते हैं। सो यह रजिस्टर रीनेमिंग एंड ऑल दोस विल बी using like Tomasulo algorithm, इसके साथ अपन करते हैं। So Tomasulo algorithm will be used out of order execution। कैसे करेंगे, it will split the instruction decode stage into two, है ना, two parts में divide करेंगे, one is issue and second one is read, है ना। decode the instructions and check for the structural hazards, है ना। एक बार डिकोड करिएगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर स्ट्रक्चरल हजार्ड है क्या, सो वहां पर डिवीजन है, डिवीजन इज अ स्ट्रक्चरल हजार्ड, है ना। डिवाइजर इज नॉट अवेलेबल, इट इज यूज्ड बाय सम अदर इंस्ट्रक्शन, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल हजार्ड। एंड रीड को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड इज द रीड, है ना, ऐड के लिए आपको डेटा हजार्ड है ना, वेट अंटिल नो डेटा हजार्ड एंड देन रीड द ऑपरेंड्स, है ना। इट विल बी डिवाइडेड इनटू आईडी इश्यू एंड रीड, है ना। स्ट्रक्चरल हजार्ड कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन को इश्यू करिएगा। अगर इंस्ट्रक्शन को रीड कब करना, इश्यू करने के बावजूद, डेटा हजार्ड कुछ भी नहीं है, देन इसको रीड करिएगा। ओके, दिस इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड स्कोर बोर्डिंग टेक्निक एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड टोमासुलो एल्गोरिथम। ओके, सो दीज एल्गोरिथम्स में टोमासुलो एल्गोरिथम पे इट विल बी यूजिंग द इश्यू स्टेज पे क्या होगा, क्यू से नेक्स्ट मतलब इंस्ट्रक्शन को लेकर आइएगा। यहाँ पर वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन स्टेशन। अगर स्टेशन इज अवेलेबल देन इश्यू द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल देन आप वेट की स्टेट पे डालिएगा, मतलब स्टॉल द इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट मत करिएगा। फिर एग्जीक्यूट कब करेंगे, ऑपरेंड्स आर अवेलेबल देन मतलब इसको एग्जीक्यूट करिएगा। एंड रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर मतलब आप वहां से डेटा मतलब ऑपरेंड को लेकर आके एग्जीक्यूट करें, एंड ऑल ऑपरेंड्स आर रेडी, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड अवेलेबल है तो उस रिजर्वेशन स्टेशन से फेच करिएगा, ऑपरेंड्स आर रेडी टू एग्जीक्यूट देन वी विल जस्ट रेडी एग्जीक्यूट करिएगा। ऑपरेंड्स आर रेडी हो गया देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट राइट द रिजल्ट, है ना। आफ्टर एग्जीक्यूशन के बाद अब इश्यू हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, सो राइट द रिजल्ट इन कॉमन डेटा बस, है ना। सो द नेम ऑफ द रिजर्वेशन यूनिट दैट जनरेटेड, है ना, कॉमन डेटा बस में किस रिजर्वेशन स्टेशन को ये जरूरत है वहां पर भेज दीजिएगा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट आप कैसे देखिएगा, यहाँ पर कैसे होगा। सो देखिए ये सपोज ये A एंड B टू रिजर्वेशन स्टेशंस है, यहाँ पर एक A5 6 एग्जीक्यूट कर रही है पे, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, यहाँ दूसरी ऑपरेंड अवेलेबल नहीं, बट ये कौन सी रिजर्वेशन स्टेशन से अवेलेबल होगा, ये B रिजर्वेशन स्टेशन से अवेलेबल होगा। सो ये B क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके इसको आपको कॉमन डेटा बस में डाल देंगे, देन वी विल फेच फ्रॉम कॉमन डेटा बस से। इस रिजर्वेशन टेबल को जरूरत है, ए को जरूरत है, मैंने कंप्यूट किया, देन वी विल फेच द डेटा, है ना। द होल कॉन्सेप्ट इज डिपेंडिंग ऑन द रिजर्वेशन स्टेशन। सी रिजर्वेशन स्टेशन लाइक दिस, इट विल बी इंस्ट्रक्शंस क्यू में ऐसे रहेगा। सो यहाँ पर कौन कौन सा है, एडर्स होगा, फंक्शनल यूनिट, मल्टीप्लेयर्स होगा, यहाँ पर रिजर्वेशन स्टेटस मतलब 1 2 3 इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कितना डेटा यहाँ पर होगा अवेलेबल, यहाँ पर भी डेटा होगा। यहाँ एग्जीक्यूट होने के बाद एक कॉमन डेटा बस में डाल देंगे, देन इट विल मतलब आपको मतलब यहाँ से डेटा ले सकते हैं, इस रजिस्टर से, इस वाला ए वाला रजिस्टर से यहाँ पर स्टेशन पे। एंड दिस इज फॉर द लोड, एड्रेस यूनिट कैलकुलेट करेंगे कौन सी एड्रेस में, दिस इज फॉर द स्टोर एंड दिस इज फॉर द लोड, है ना। लोड एंड स्टोर के लिए भी ये होगा। सो ये टोटल कॉन्सेप्ट विल बी लुकिंग बाय वन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सो
यहाँ पर दिस इज द इंस्ट्रक्शन रिजर्वेशन टेबल का ऐसे होगा। इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट एक रजिस्टर स्टेटस इंडिकेटर है ना, हर रिजर्वेशन टेबल पे आपको स्टेशन पे, रिजर्वेशन स्टेशन पे एक रजिस्टर स्टेटस इंडिकेटर होगा। रजिस्टर स्टेटस इंडिकेटर इज इक्वल टू जीरो मीन्स उस रजिस्टर को आप यूज कर सकते हैं। अगर वो जीरो के इट इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इट विल बी बिजी है ना, उसको यूज नहीं कर सकते। these are the execution units, this is called reservation execute, मतलब यहाँ से डेटा लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कॉमन डेटा बस में डाल देंगे। so यहाँ से सपोज इस एग्जीक्यूशन यूनिट का मतलब ये वाला डेटा चाहिए, दूसरे रिजर्वेशन टेबल को मतलब यहाँ से डेटा किसी और को मतलब इस स्टेशन को चाहिए, so यहाँ से डेटा कॉमन बस से इट विल बी गोइंग हियर है ना, ये कनेक्टेड है। ओके, so a common data bus, these are the execution units and this is the reservation station, a register status indicator and इंस्ट्रक्शन फेच एक रिजर्वेशन टेबल का, ये स्टेशन का एक मतलब ऐसा ब्लॉक डायग्राम है, देखिएगा। and then we will see with one example. So see here, this is the add, 5 instructions are there and register instruction fetch is empty now. Register status indicator, this is R1, R2, R3, R4, R5, these are the 10, all are zero which will be indicated with zero because zero है तो ये use कर सकते हैं। functional units are empty, adder होगा, कोई भी functional units होगा, ये सब empty है। ओके, सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, सो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ गया, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच पे R1, R2 एंड R3। सो क्या है यहाँ पर, सो फंक्शनल यूनिट फर्स्ट पे आ गया, इंस्ट्रक्शन 1 है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। देखिए R2 एंड R3, R2 is 0, R3 is 0। ओके, सो these two are available। ओके, it will be executed एंड ये फंक्शनल यूनिट का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, स्टेटस 1, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट पे R1 की रिजल्ट है, इट इज एग्जीक्यूटिंग। ओके, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट से ये बिजी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टोर R1 R5 प्लस 40। ओके, ये R5 प्लस 40 ये वाला कंटेंट को अपन को R5 रजिस्टर R5 पे क्या है उस कंटेंट प्लस को ये R1 को स्टोर करना है ना। इंस्ट्रक्शन 2 है, अभी R1 इज नॉट है ना, ये कंटेंट ऑफ R1 को इस लोकेशन पे अपन को स्टोर करके रखना है, मतलब स्टोर करना है, बट R1 इज बिजी विथ, इट इज नॉट 0 है ना, 1, सो इट विल, इसीलिए मैंने किसके लिए 1 है, मतलब ये वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के वेटिंग पे है ना। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 2 इट इज इन वेटिंग स्टेट पे है। ओके, इट इज नॉट। सो नेक्स्ट क्या है, दिस इज थर्ड, R1, R5 and R6। okay, R5 is 0 and R6 is 0, we can execute it। okay, instruction 3 it will be execute करके कहाँ स्टोर करना है, R1 पे करना है। ओके, सो R1 अभी कौन सी डेटा को, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब ये थर्ड इंस्ट्रक्शन के डेटा को रखे, सो थर्ड फंक्शनल यूनिट की, एंड इट इज इट्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इट इज subtraction R7, R1 and R8। ओके, R1 इट इज मतलब वेटिंग में है क्योंकि R1 खाली नहीं है, R8 को तो फेच कर सकते बिकॉज इट इज ओके, एंड R7 में आपको मतलब इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट को स्टोर करना है। R फंक्शनल यूनिट कौन सा है, ये फोर्थ है, सो R7 में फोर्थ है, बट इट इज इन वेटिंग। वेटिंग फॉर किसके लिए, 3, दैट इज R1 की, उसके लिए अपन वेट कर रहे हैं अपन। ओके, and next instruction क्या है, this is add and R1, R9 and R10। okay, R9 and R10 these are all available। okay, and it will be store the result in R1 that is equal to fourth functional unit ka data, this is execute, it will be storing here। okay, so here 2 instructions are waiting, this is for the waiting for 1। okay, second instruction for फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे, एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन आपको W3 के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, मतलब अंडर द ये यूनिट 3 के लिए वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिखिएगा ये स्टोर
किस यूनिट 1 के लिए वेट कर रहे हैं वहां पर एग्जीक्यूट होगा यूनिट 1 का, उस डेटा को अपन इस लोकेशन पे लिखेंगे. ओके, एज सुन एज पॉसिबल इट विल बी एग्जीक्यूटेड, द डेटा विल बी फेच्ड एंड वी कैन डू. एंड सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन इज वेटिंग फॉर U3. ओके, U3 के लिए वेट कर रहा है वो. U3 मीन्स ये इंस्ट्रक्शन 4, मतलब U3 ये इंस्ट्रक्शन ये एज सुन एज पॉसिबिलिटी पे एग्जीक्यूट होगा. इसके अंदर क्या डेटा हो जाएगा वो अपन आपको इस दोनों को कंप्यूट करके R7 पे अपन को करेंगे. ओके, so like that it will be working the Tomasulo approach. Okay, so this reservation station will be contain the 7 fields: operation field and QJ and QK है ना, this is J, QJ and QK, these are the रिजर्वेशन स्टेशंस कौन से स्टेशन में है, VJ and VK इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन स्टेशन का वैल्यूज है. ओके, these are the two values. And A is the address for load and store instructions. Busy means reservation table and corresponding functional unit are occupied. Then we will indicate it with busy. Okay, so see here one example. Here these are the instructions. This is the double instruction. These are the floating point instructions. Okay, so ये Tomasulo visualization ऐसे होगा. These are the name, मतलब functional units are available. Two load units and 3 adders and 2 multipliers, multiplication units are available. Busy and ये पूरा ऑपरेशन कौन सा है, QJ and QK, VJ and VK, the corresponding QJ, VJ, QK and VK, these are the sets. Okay, and this is the address of particular instruction. So see here first these are the functional, कितने registers अपन यहाँ पर है वो registers को यहाँ mention किया मैंने. Suppose load instruction is there. Okay, how it will be load instruction, first it is लोड 1 पे जाएंगे, बिजी एस. ओके, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन क्या है, दिस इज द लोड. ओके, लोड के लिए आपको कोई भी रिजर्वेशन स्टेटस का ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज रिजर्वेशन स्टेटस पे स्टेशन पे क्या है देखिए एक बार, रिजर्वेशन स्टेशन इट विल बी लोड एंड स्टोर की अलग बफर्स है, ये ऑपरेंड्स इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, हियर सो दिस इज द लोड. ओके, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर कोई ऑपरेंड नहीं है, इसका क्या है 56 प्लस कंटेंट ऑफ R1 रजिस्टर. दिस इज द एड्रेस. ओके, एंड सो फर्स्ट ये कहाँ पर है, F1 पे. सो F1 पे मैंने क्या लिखा, दिस इज द लोड 1 ऑपरेशन, इट विल बी. ओके, and load 2 क्या yes है, load operation 35 plus R2. okay, ये कौन सा 35 plus R2 F2 में जाना है. okay, it is in F2. and third instruction is subtraction. तो देखिएगा this is adder only will be using for the subtraction, multiplication will be using for the division only. okay, यहाँ पर S, this is the subtraction. subtraction का 2 instructions क्या है, F1 and F2 है ना. F7 पे subtraction को लोड करना है, F1 and F2. F1 and F2 are load 1 and load 2 है ना. this is so this is the load 1 and this is load 2, it will be यहाँ पर. okay, and the next instruction is multiplication. so multiplication पे this is multiplier पे S है, multiplication है. so क्या है, F2 F4. F2 क्या है, load 2 and F4 क्या है, F4 डेटा अवेलेबल है ना, इट इज 0. ओके, दीज आर ऑल अवेलेबल नहीं है. सो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर है ना, ये लोड 2 है. सो इस पर्टिकुलर ये सेकंड ऑपरेंड अवेलेबल है ना, दिस इज रजिस्टर ऑफ F4. इस पे क्या डेटा है उससे फेच कर सकते हैं अपन. ओके, and it is division के लिए, ये addition के लिए. okay, so using this table Tomasulo it can be easily identified कौन सा instruction कब कर सकते हैं. suppose यहाँ load 1 compute हो गया, load 1 compute as soon as possible it will be computed मतलब completed. क्या करेंगे, ये load 1 यहाँ पर subtraction के पास ये data पास हो जाएगा. okay, it will be forwarding the data from this reservation table है ना, reservation station यहाँ से आपको यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा लोड 1 होने के बाद. नेक्स्ट लोड 2 कंप्यूट हो गया, देन ये भी ट्रांसफर हो जाएगा. एज सुन एज ये दोनों डेटा अवेलेबल हो गया, देन सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड. सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड है ना. सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड यहाँ होने के बाद इट विल बी
होने के बाद देन ये इंस्ट्रक्शन की यहाँ पर ये डेटा मतलब अपन को यहाँ पर जरूरत है ना, एडिशन वाला दिस इज है ना, यहाँ पर F7 इज सब्ट्रैक्शन, इस डेटा से अपन को जरूरत है ना। सो जरूरत हो गया था F7 से अपन को सब्ट्रैक्शन एंड लोड 2 ये डेटा मतलब एडिशन वाला कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अगर लोड 2 भी अवेलेबल हो गया तो मल्टीप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एट द सेम टाइम ये लोड 1 लोड 2 हो गया, फर्स्ट ये वाला कंप्लीट हो सकता है एंड ये वाला भी सेकंड ये वाला भी कंप्लीट हो सकता है। फिर इसके बाद आपको ये सब्ट्रैक्शन वाला मतलब ये वाला फोर्थ एडिशन 2 वाला कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्यों अभी मतलब कहाँ पे F0 की वजह से है ना, मल्टीप्लिकेशन दिस मल्टीप्लिकेशन एंड लोड 1 क्या है F1 के अंदर है। So this will be completed. So using this table visualization we can easily identify कौन सा इंस्ट्रक्शन की वजह से कौन सा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की वजह से लोड 1 लोड 2 कंप्लीट हो गया तो ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सो लोड 1 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड 1, सेकंड इंस्ट्रक्शन लोड 2 and third instruction is subtraction, this will be completed and fourth instruction is multiplication है ना, मल्टीप्लिकेशन इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं आप। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन के बाद लोड 1 ये मल्टीप्लाई 2 है ना, ये डिवीजन वाला इसको कंप्लीट, फिर इसके बाद ऐड भी कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन डू द ऑर्डर आल्सो वी कैन बी चेंज, कौन सी डेटा कहाँ फॉरवर्ड करना है आपको वो भी यहाँ पर हो रहे। सो यहाँ पर मतलब आपको इस टेबल को देख के आइडेंटिफाई हो रहे कौन से रजिस्टर्स आर फ्री कौन से रजिस्टर्स आर बिजी, इसको देख के अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट, एक और इंस्ट्रक्शन आ गया, वी विल एबल टू सी कौन सी फंक्शनल यूनिट आपको खाली है। सो दिस Tomasulo algorithm यूज करके it will be easily visualized. We can do the renaming of the registers, forwarding and out of order execution, ये सब इसको देखकर अपन कर सकते हैं। This is the advantage of Tomasulo algorithm. So Tomasulo algorithm पे each reservation station है ना, the instruction, so buffered operand values है ना, कौन सा ऑपरेंड कहाँ पर अवेलेबल है, रिजर्वेशन स्टेशन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग द ऑपरेंड वैल्यू, so कौन से स्टेशन पे कौन सी डेटा अवेलेबल है ये भी रिजर्वेशन स्टेटस पे हो जाएगा। So using this easily you can identify the order of instructions and renaming of the instructions. These are all done by Tomasulo approach. Okay, so this is the dynamic scheduling. In today's class we discussed about dynamic scheduling, hardware scheduling. Okay, hardware scheduling using Tomasulo approach, it will be changed. So Tomasulo approach में reservation status होगा, it will be split into 2 stages, है ना, issue stage पे चेक करेंगे and next read stage, that will be एक issue stage पे structural hazard को, read stage पे data hazard को चेक करके अगर है hazard है then it will stall it, operation को execute नहीं करेंगे, कौन सा free है data free है उस instruction को execute कर सकते हैं। Thank you. Next class we will be dealing with this is the end of the 3rd unit, cache coherence. In next class we will discuss with the cache coherence problem. Okay.